City is better. City. Genuinely, I'm going to get a lot of hate for this, but Mumbai is number one. वन फाइन डे मेटा वालों की तरफ से एक ईमेल आता है, विमेन डे के लिए था वो, लाइक सेलिब्रेशन के लिए. तो मेरे को लगा कि फेक है, बिकॉज ईमेल आता है और मेटा से आया, तो मेरे को ऐसे कि फेक ही होगा, पक्का फेक है. तो मैंने वो मेल पे रिप्लाई किया और मैंने बोला नहीं क्लिक करूंगी इस लिंक पे. तभी उनका सामने Who does that, bro? आई डोंट. Name best influencer according to you. I'll name two: Wake Up Avi and दूसरा अभी का ग्राम. Said just because वो लोग बाजू ये में. कट करने के टाइम पे राजीव का पार्ट कट हो जाएगा ना ऐसे, मतलब स्क्रीन में. लॉल कैसे बोल रही हो यार? लाइक आई डोंट, नहीं बट एक्चुअली मेरा हाथ आ रहा है उसमें. नहीं, but बिकॉज तो ही डिडंट टेक माय नेम. Oh shit! Hi, मैं हूँ राजीव, also known as Live It Up with Rajiv. हाय, मैं हूँ नीलम, ऑल्सो नोन एज 101_food page. Hi, myself Bhavesh from Jhakas Flavors of Mumbai. और हमने टेक ओवर कर लिया ये पॉडकास्ट और हमारी आज की गेस्ट है स्नेहा. Okay, I'm not at all complaining, guys, because I just love these people to whatever I have, it's all theirs, because itne best people I have found in this industry is this. Food bloggers, very popular food bloggers from Mumbai, and one of the bestest और very genuine, have very organic reach. बहुत सालों से ये फील्ड में है and still very down to earth. आज उन्होंने बोला कि हम टेक ओवर करेंगे and we will call you as a guest. I said please do that because I don't at all like mind this thing, and yeah, I'm so happy to be like sitting with my people today, and thank you so much for coming, guys. I think I don't need even like introduce them. They have introduced themselves. That's how they are, very confident on camera, always like not at all camera shy, camera lover, and like ekdam chic and all like dressing you can check. So it's all good. So आज का podcast है ना, honestly बोलूँ तो it is not about like going into any deeper topic or maybe like talking on like हाँ चलो ये technical चीजें बात करते हैं. Today's like podcast is very chill. It's just like friends meeting and talking. That's how we we have met and connected with each other, और हम ऐसे ही bond हमारा ऐसे ही हुआ है. I think I know Rajiv since two years, more than 2 years now. Neelam since 1.5 year, I think, and Bhavesh also 1.5 year. And the bond that we have is something that you will see on this podcast. So stay tuned till last. Without wasting any time, let's do. थोड़ा सा इंट्रो में मिस कर रही तो थोड़ा सा मेरा कर ही देती हूँ. हेलो हाय, कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम बेस्ट हूँ. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्लिस टॉक्स विद स्नेहा नायडू. आज के हमारे गेस्ट हैं very popular food bloggers from Mumbai, and they also do travel vlogs. And let me just give you a small introduction. Rajiv is Live It Up with Rajiv, and he also handles Arman Malik, which is just the fab job that he has, and he does it very perfectly, I feel. Then we have one on food page, Neelam Datta. She is most beautiful, stunning, very confident food blogger that we have. I think sometimes she should also do like a fashion blogger. Then we have Jhakas Flavors of Mumbai, Bhavesh Mehta. He is just amazing. Along with being a CA, he is also doing food blogging things since like last 4 years. 4 years, yeah, and just nailing it in the industry. So उनका पेज तो जरूर चेक करना, and let's begin our conversation. Let's go. चलो, what's we talking on today? किसका gossip करेंगे यार आज? आज gossip करेंगे क्या? चलो. Oh my God. चलो. बताओ कितने राज खोल हैं. अच्छा चलो, let's begin with small like journey का मुझे थोड़ा बताओ कि how have you started Rajiv, then you and then. नहीं, I think ladies first. Go Neil. Oh. That's how our boys are very charming girls. But don't check them out, they are committed. Not official. Probably she's watching this, but I've been in this industry, that is the food industry, for the past 4 years now, and worked with corporate for almost 7 years. And in food industry, I have 4 years of experience, and and by profession, I mean, I was a banker. I left my job 4 months ago to pursue this food blogging full time, and so far it's going very good. And honestly speaking, I've met some fabulous people. As you can see, I'm sitting with them right now, and they have helped me survive, honestly speaking, in the initial days of my life. And it's going pretty good now.
Nice. What about you? So basically, I started during my college days. So during my articleship of my chartered accountancy course, we used to eat a lot outside. So let's start posting that on Instagram. So that's how we started. Then doing my job and everything, one day I was like, okay, let's start something of my own. So I started my content creation journey, a full-time journey with my agency, which is Drishtancy by BM. So that is how my chartered accountancy to content creation and now to having my own agency. Oh wow. Wow, that's So nice. in this like room we also have like agency people and some influencers. So maybe some controversial things might happen later on. So stay tuned. Dear Go on. Jones. So I started blogging in 2018 एंड लाइक ऐसे ही जैसे अभी इसने कहा भावेश ने कि मेरे को टिफ़िन लेके जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मेरे माँ बाप वो चीज़ हेट करते हैं, बट आई वाज लाइक मेरे को टिफ़िन तो लेके नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही खाऊंगा कुछ भी हो जाए. सो हर दिन एक नया रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा था. आई वाज लाइक कि ये कर ही रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ सबकी व्लॉग्स यार बहुत अच्छे चल रहे. तब यूट्यूब पे करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी डालूंगा, मैं भी शुरू करूँगा. अब जब मैं अपना फर्स्ट वीडियो देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं क्यों बनाना शुरू किया. बट नाउ दैट आई एम हियर, आई फील लाइक आई एम ग्लैड आई स्टार्टेड बिकॉज इट्स बीन लाइक हाउ मेनी लाइक 7 years नाउ. आई डोंट नो 2018 से यहाँ तक कितने साल हो गए, बट लाइक मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. एंड आई एम ग्लैड कि वो वाले राजीव ने शुरू किया, तब जाके आज लिव इट अप विद राजीव बन पाए हो. तो But I have one complaint about Yes, you. बोलो. You don't post regularly and not consistently. But सबको Because पता I want see personally I feel ना कि मुझे तेरा कंटेंट देखना 101% Wow, बहुत ज्यादा that's पसंद amazing. है. Thank मैं you so सच्ची much. बोल रही हूँ, मतलब मुझे ऐसे जो एकदम लाइवली कंटेंट अगर कोई बना देना, that is you person. थैंक यू. In this whole industry मतलब Hey, कोई भी so कितना sweet. भी बोलते ना सेल कर रहा होगा, हाँ, वो हाँ. डिफरेंट पार्ट हो गया. वो तो मैं भी फिर बोलती हूँ चिल्ला चिल्ला के भाई ये ऑफर है ये ऑफर है. हाँ. बट देन व्हेन यू कम अप विद थिंग्स ना, हाँ. तो वो भले कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, you have that potential to make it like very एकदम Thank cool, you. look cooler with Thank your you so looks and like all the things that you do, and then voice over also. So I feel that you should post more, and I Bro. think your audience will agree on this thing. I genuinely agree with you, and this is actually everyone's complaint, and I get it where you're coming from. The only thing is now with me what happens is कि मेरे को ऐसा लगता है quality is more important than quantity, and I think I have spoken to every one of you, like almost all food bloggers are our friends only, and मैं सबको एक ही बोलता हूँ कि भाई रोज मत पोस्ट कर, क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे. When you have वो ना कि मतलब यार एक चीज का बोलते हैं ना, वो पसंद आ गया ना, तो हाँ, फिर हाँ. ऐसा होता है कि यार बार बार देखने का मन कर रहा है, हाँ, वैसा हो गया वैसा. काइंड ऑफ थिंग. Fuck, wow, thank you यार. No, but Genuinely. also one more thing कि वो उसका कंटेंट कैसा करता है, क्यों पसंद है लोगों को कंज्यूम करना, बिकॉज वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता है. हाँ. इफ आई से कि मैं कुछ अपना सपोज एक पैटर्न यूज करूँ या कुछ यूज करूँ वीडियो में, या एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ, दैट इज एवरीबडी इज हैप्पी ऑन द इंटरनेट. हाँ. ओके, नोबडी इज सैड ऑन द हाँ. इंटरनेट. जब तुम दिखा रहे हो कुछ, बट तुम ऑल्सो वो क्या बोलते हैं, एक चेंजेस है. There's ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है रिगरसली वैसे ही वीडियोस बना रहे 10-15. उसमें हमेशा कुछ क्रिएटिविटी होती है. क्रिएटिविटी इज द टर्म आई वाज फाइंडिंग फॉर. सो क्रिएटिविटी दिखती है राजीव के वीडियो में. एंड पहले Wow. मैंने उसको वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट किया था, वो कैडबरी वाली वीडियो 2021. Damn. हाँ. सो मैंने उसको तभी हाँ, it आई was गेस the viral. That तभी वो was- फेमस नहीं था. famous I'll be नहीं था. honest. हाँ. तभी वो फेमस नहीं नहीं, था, नहीं, बट वो नहीं. एक वीडियो मिलियन हिट किया था एंड इट वेंट क्रेजी. Crazy. best. She thought it wasn't being recorded और अभी इसने मेरी इतनी तारीफ कर दी. मैं ये क्लिप सिर्फ मेरे को इतना क्लिप का कटिंग मैं अपने फीड पे डालूंगा और इसे ऐसे सेव करके रखूंगा. Genuinely because I know her since like I had तभी 7,000 followers और तभी ये start कर रही थी. And I had seen her content and I was like, wow, I like your content. Keep doing the hard work. तू ऐसे ही ग्रो करेगी. एंड तभी हम लोग डिस्कस भी करते थे कि कैसे क्या करना चाहिए. हमने तभी डिसाइड भी किया था कोलैबोरेट करेंगे. Yes. बट कभी हो नहीं पाया. बट दैट इज ओके. और एंड मैंने सोचा था ये मुझसे क्यों कोलैबोरेट करेगा, इसकी रील्स तो मिलियन हिट हो ए, गई, नहीं. इतना बड़ा आदमी है, ये मुझसे क्यों कोलैबोरेट करेगा. मैं लिटरली ऐसे सोचती थी. वेट आई रिमेंबर हमने कोलैबोरेट किया है रोल्स ऑन कोल्स. हाँ बट कोलैबोरेशन करने में काफी मजा आता है, मैं बता मजा आता है, लाइक मी एंड आलिशा हैव डन इट लॉट ऑफ टाइम्स और मुझे इतना मजा आया है भाई, जो एडिट और वो वॉइस ओवर True, करने true, में, true. म्यूजिक डिसाइड करने में मजा आता है. मजा आता है. यस नहीं हमने किया है कोलैबोरेट. बट वो तभी ये बहुत नहीं थी और तभी ये बहुत शाय थी, ऐसी सहमी सी आई और ऐसे बैठी. मेरे को ऐसे डर लग गया कि ये मेरे से डर रही है, हो क्या रहा है. और बाप रे. ट्रू. ये तो मैंने देखा है, मतलब वो साइड मैंने नीलम का देखा नहीं है कभी ऐसा सेमी इसकी पर्सनालिटी कैसे आती है ना, मतलब इसकी पर्सनालिटी काफी वाइब्रेंट है.
तो ऐसे इट्स अ लॉट टू टेक इन, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम यू मीट इट्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदा ऐसे इज ही रियली लाइक दैट इन रियल लाइफ और इज ही जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी, आई एम सॉरी बट इज ही प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दैट पर्सन की एनर्जेटिक वाइब्रेंट एंड ऑल दैट स्टफ. So I was a little confused. Is he real or not? I only make friends with real people, so they are real. So the point here is, कि वही है कि it's a lot. It was a lot to take in. So I was like, हाँ ठीक है, जब जानने लगे gradually, and हो गया अभी 2021 से जाना. It's been more than 3 years. Yeah. Are there any people that you have met like जो internet पे बहुत अलग है and then in real life they are very अलग? Yeah. True. Don't name it, but tell me the experience. एक्सपीरियंस. Yeah. आई मीन कैसा होता है ना, लाइक वो हिंदी में कहते हैं ना, खाने के दांत अलग दिखाने के अलग. सो कैसे होता है व्हेन दे चैट एंड दे टॉक टू यू ऑन कॉल, वो 2 घंटे चलता है एंड यू आर लाइक वाओ दे आर सो नाइस, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे. बट कुछ टाइम के बाद देखो कैसे होता है ना, तुम अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा नहीं पाते. तुम प्रिटेंड कब तक करोगे? प्रिटेंड एक लिमिट तक ही कर सकते हो, बाद में तुम्हारी रियल पर्सनालिटी ट्रू कलर्स दिखना चालू हो जाता है, तुम नहीं छुपा पाओगे. इससे अच्छा बिगिनिंग से वैसे रहो जैसे तुम हो. सो बिगिनिंग में ना जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट द वर्क डन, वो बहुत स्वीटली बात करेंगे. एंड जैसे आप अब सपोज फिर उनका इंटरेस्ट निकल गया एंड देन यू आस्किंग चलो नाउ डू द पेमेंट, और प्रॉब्ली अभी जो भी है बात करने की बारी आती है, देन दे शो द ट्रू कलर्स. मतलब दैट इज रियली बैड. जो भी है स्टार्टिंग से बी रियल, नो बी ट्रू टू योर सेल्फ एटलीस्ट, नॉट विद अदर्स बट खुद के साथ तो रियल रहो. एजेंसी वाले होते ही ऐसे. नहीं भावेश ऐसा नहीं. मतलब वो चीज आई गेस ऐसे इन्फ्लुएंसर ऐसे कंटेंट क्रिएटर सब लोग ही फेस करते हैं. What you have perspective on this thing कि influencers are facing like very bad payment problem? So I guess somewhere agencies खुद फेस करती है, क्योंकि the brand itself like वो लोग फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि we won't pay, we didn't get the response, ये वो. So I feel that the agreements have to be more थोड़ा taken care के हम पहले वैसे agreement sign करें. Because myself I've seen that कि brands ऐसा होता है कि हम उनके पास जा रहे हैं क्या उनकी पेमेंट क्लियर करवाओ, बट फिर ब्रांड्स ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तो वो सारी चीज़ों में फिर एजेंसी का भी नाम खराब हो जाता है एंड फिर वो रिलेशन एक इन्फ्लुएंसर और एजेंसी का खराब हो जाता है. बट ये कौन सा स्कैम है? जैसे लोग बोलते हैं कि ये वाला तुम बार्टर में कर दो, नेक्स्ट वाला हम तुमको पेड़ देंगे. ये कौन सा स्कैम नया लाया इंडस्ट्री में? मेरे को ये बताओ कि आया कहाँ से? उनको तुम बोलो मैं पेड करो, नेक्स्ट वाला I tackle them this way only कि भाई तुम ये वाला पेड करो, मैं नेक्स्ट वाला बार्टर में करती हूँ, हाफ प्राइस में करती हूँ. क्योंकि मुझे भी तो आप लोग पे भरोसा होना चाहिए ना. True. This is so smart. वो कहाँ से आया? ये कहाँ से आया है? ये बताओ मुझे. पीपल आर गेटिंग स्मार्टर. तुमको पता है इन्फ्लुएंसर मान नहीं रहे, तो कुछ नया ट्रिक्स है. आई गेस अभी ये ट्रिक भी ओल्ड होने वाला है and there would be some new trick Influencer have like good response on that thing. तो ये तो फुल कर ही नहीं सकते. हम भी वही, मैं भी वही करता हूँ यार. तुम पहली वाली डील मेरे को ज्यादा पे कर दो, नेक्स्ट हाफ में कर देंगे. True. पता है क्या फर्स्ट कलर गायब होने वाला है. हाँ एग्जैक्टली. मुझे अभी का यही मंथ का ऑफर था जिसमें दे गो ना लाइक पे गुड अमाउंट, और वो बहुत मतलब ट्रैश ब्रांड है, लाइक वो थ्रिफ्ट स्टोर है बेसिकली, विच आई हेट. मैंने बहुत बार करा, बट देन मुझे बाद में समझा कि भाई ये बंदा मतलब वो मेरे को ना हमेशा मतलब ऐसे आता है, मैडम आप ये वाला प्लीज कर दो ना, मैं ना आपको सच्ची बता रहा हूँ एकदम ब्रांडेड कपड़े लाए, आप नए कपड़े आप आओ. तो मेरा उसको पता है कि मैं फेक चीज नहीं प्रमोट करती, जो है मैं वो कमेंट में भी डालूंगी, प्लस आई मेंशन इट इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो कि भाई ये मतलब सही नहीं है, आप जाके खुद वो डिसअपॉइंट नहीं होना और मेरा नाम वो मत लेना. तो मैं क्लियर लिखती हूँ वैसे. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3rd टाइम हुआ, 4th टाइम उसने ट्रिक ये यूज किया, मैम मैंने एकदम ब्रांडेड लाया, अब आ जाओ बस लोगों को अपन मतलब हेल्प कर रहे हैं. मैं गई फिर से, आई हैव सीन इतने गंदे कपड़े भाई, इट वाज सेकंड हैंड मतलब. और पता है क्या मतलब, सी आई डोंट नो लाइक इफ यू गाइस बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी और समथिंग, बट आई डू बिलीव. और मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं पे अपने को वो आता है ना लालच पैसे का. व्हेन आई वाज नॉट डूइंग, ही वाज रेडी टू ऑफर मी ट्वाइस द अमाउंट दैट आई एम डूइंग.
So अभी मुझ पे था if I should go or not. Yes, और yes. कल ही मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मतलब इतना दिल पे पत्थर रखा ना मैंने. और एंड व्हेन आई टोल्ड माय मॉम, देन माय मॉम वाज लाइक कि बट तुझे पैसे का जरूरत है अभी फिलहाल, Yes. यू डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. Yes. सो थिंक अगेन वो चीज आती है अपने अंदर से कि My mom करना है said क्या, Same thing recently. when I करना है क्या. rejected इवन her. शी वाज चेकिंग मी कि इफ आई एम गेटिंग यू नो लाइक इनटू दैट. तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी कोई भी आके कुछ भी चीज बोले मैं ये चीज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं 2 बार फंसी हूँ खुद. बराबर तो आई बराबर कांट लाइक फूल पीपल ऑल्सो. True, तो true. ये मतलब मैंने अभी मतलब बोले ना खुद से वो रख लिया है कि नहीं भाई, अगर लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं आई एम गिविंग गोना गिव देम 100%. Yes. True. हैव यू गाइस एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस थिंग के जो जाके समझा कि भाई ये बहुत गंदा फेक है. ऐसा तो बहुत बार हुआ है, जेन्युइनली मेरे साथ तो बहुत व्हाट बार यू हुआ गाइस है. डू? मैं पे करके निकल जाता हूँ. अगर मैं शूट करने गया हूँ, इट्स अ कोलैबोरेशन, आई विल पे फॉर व्हाटएवर आई हैव ईटन एंड आई विल लीव. क्योंकि अगर जेन्युइनली नहीं अच्छा लग रहा लोगों को बता के मतलब है ही नहीं. ये भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम फूड ब्लॉगर्स हैं, जैसे मूवी के रिव्यूज बहुत डाइसी होते हैं, वैसे फूड के भी हो सकता है. जो इसे अच्छा लगा है वो शायद मुझे नहीं लगेगा, बट हम दोनों को लग रहा है वो अच्छा, तो ये भी हो सकता है. बट और उसी चीज के चक्कर में अपने पेज पे हर बार हेट आता ही रहता है. Yes. कितना भी अच्छा डाल लो, कितना भी खराब डाल लो, जितने अच्छे कमेंट्स है उतना ही 20% हेट कमेंट्स भी होंगे कि नहीं ये तो बेकार है, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बट कुछ कर नहीं सकता. आई मीन अगर नहीं अच्छा लग रहा मत शूट करो, निकल जाओ वहां से पे करके. वो बोलते हैं ना कि जितना तुम अच्छे काम करते हो उतनी haters भी बढ़ते हैं. हाँ बढ़ते हैं, सच The है. thing is क्या है ना, मैं तुझे एक बात बताती हूँ. जब when you post something ना, तू उसका ना बैकग्राउंड स्टोरी नहीं डालता है. जैसे तूने अभी बोला मैं पे करके निकल गया, यू शुड हैव एटलीस्ट पोस्टेड अ स्टोरी अबाउट इट दैट ये ऐसे था, नाम मत बता. इवन बाकी हाँ, ब्लॉगर्स गेट अवे. Do not have to demean the brand, okay, here, but at least बता, उनको पता चलना चाहिए what goes behind this. True, Of course true. they'll hate on you. मतलब Yeah, it's yeah. obvious because difference of opinion आ जाता है वहाँ पे, but उनको पता लगना चाहिए. मुझे ये कि जो BTS बोलते हैं ना, that's a must when story पे, at least story पे. जैसे मैंने कैसे किया, ये मैंने गलती किया. इनिशियली मेरे को 2 बार फूड पॉइजनिंग हुआ, ठीक है. Shit. हाँ मैं गई थी, मैंने खुद शूट किया था, बट मैंने वो पोस्ट ही नहीं किया. क्योंकि हाँ, अगर मुझे फूड पॉइजनिंग होगा, अब मैं अपने लाइफ टाइम वो फूड कंज्यूम नहीं करने वाली हूँ, तो मैं अपने ऑडियंस को भी नहीं दूंगी. बराबर. तो मोमेंट यू स्टेप इन, आपको लगता है कि आप यहाँ पे खुद या अपने फैमिली के साथ नहीं आ सकते. जस्ट इमेजिन कि आपकी मॉम, डैड और बहन या भाई यहाँ बैठा है, तो दे बी एबल टू कंज्यूम दैट फूड. मतलब ये तुम खुद खिलाओगे क्या उनको? नहीं ना, तो अपने ऑडियंस को भी रेकमेंड करो. इट्स दैट सिंपल. मेरे को ऐसे लगता है. सेम जो तेरे साथ हुआ. नहीं मेक सेंस. बट ये अच्छा लॉजिक है कि हमें बताना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लोगों को पता नहीं चलता कि हम बिहाइंड द सीन्स क्या क्या झेलते हैं. Exactly. उनको बस एक हमारा हैप्पी फेस दिखता है, खाते हुए शॉर्ट्स दिखते हैं, करते हुए शॉर्ट्स दिखते हैं, एंड दे बी लाइक अरे यार वो अभी पकाने के लिए वड़ा पाव को अच्छा बोलेगा और बेचेगा हमको. बट ऐसा नहीं है गाइस. लाइक जेन्युइनली बहुत फटके चार हो जाती है जब हमको 10,000 लोगों के बीच में शूट करना होता है. एंड बट मजा भी आता है. बट Yeah. और एक चीज मुझे ऐसी लगती है कि डोंट यू थिंक कि एक जो खाना है वो अगर 100 लोग टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 20 ही लोगों को पसंद आए, भले वो कितना भी अच्छा हो, बट 80 लोगों को नहीं पसंद आएगा. तो ये कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ रहा है कि हाउ वी आर, इवन आई फील समटाइम्स कि हाउ एम आई इवन जजिंग दिस फूड बेस्ड ऑन, मतलब मैं बस मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद आया, ये यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है. बट देन देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ पीपल गोइंग देयर, तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसको पसंद आएगा ही? मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी रिस्की थिंग. मतलब मुझे आई डोंट, मतलब वही काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियन जैसा होगा. हाँ. कोई खाली नॉर्थ इंडियन फूड का लवर होगा, कोई खाली एशियन फूड चाहिए, तो दैट इज लाइक पर्सनल चॉइस. बट इवन आई फील कि उसका एक स्टैंडर्ड फ्लेवर भी होता है जो सबको पसंद आता है, समथिंग लाइक दैट. इसीलिए सब लोग इफ यू सी, अगर आई गेस मेरे नॉनवेज में खाता नहीं, हाँ. हर्ड के बटर चिकन नॉर्थ में कंप्लीटली डिफरेंट है, मुंबई में हाँ, यस completely आई थिंक हर डिश मुंबई में आती है, उसका एक मुंबईया फ्लेवर हो जाता है. पाव या तो ब्रेड जुट जाता है. There's a lot of butter, lot of True. मैदा, like पाव and everything. मैदा Lot of- ओ भाई you guys all have been like जब से आप born हुए तब से, मतलब born and brought up मुंबई. Born and brought up in Mumbai. Yes. Yeah, let go. एकदम दिल से मुंबई. you travel a lot, Rajiv. हाँ. तो what do you think? Which What do I city think is about better? food? City is better. City. Genuinely, I'm going to get a lot of hate for this, but Mumbai is number 1, Hyderabad is number 2, Udaipur is number 3. For me personally, again opinion. Opinion. I'll tell you why I have reasons for this. Hyderabad is complete replica of Mumbai in terms of roads are better, but khana
लाइक तुम हर गली में चले जाओ और तुमको लिप्स स्मैकिंग फूड मिलेगा ब्रो. पीपल आर अमेजिंग ब्रो. उनकी हैदराबादी स्लैंग तू उनसे बैठ के हाँ, बात that is कर, तुझे लगेगा कि ये टपोरी है, बट वो कोई तो एकदम अमीर बंदा निकलेगा और तू पागल हो जाएगी कि मतलब ये क्या चल रहा है. बट और अमेरी भी काफी है हैदराबाद में, आई फील बहुत लाइक. एंड द थिंग इज कि वहाँ पे स्टार, मतलब आई तो लव मूवीज, तो वहाँ पे स्टार कल्चर इज सो गुड कि अगर कोई एक्टर जा रहा है पब्लिक पागल हो जाएगी. वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स घूमने के लिए बहुत सारे हैं. सेम गोज फॉर उदयपुर. उदयपुर इज एक्चुअली कंप्लीटली शांत, बट जो नेचर है वहाँ पे उफ, लाइक तुम अगर विंटर के टाइम पे चले गए ना, मैं बता रहा हूँ इट वुड बी योर लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन. ये जवानी है दीवानी में दिखाया ना उदयपुर, वो एक्चुअली सच है. लाइक तुम एक बार वहाँ पे जाते हो और एक दिल का एक टुकड़ा वहाँ पे रख के आ जाते हो. डैम. It's that beautiful. तो ये 3 cities are like Mumbai because it's my home, but I also feel कि दुनिया में कहीं पे भी घूम लो. I've been to Dubai as well, not for much time, but like थोड़ा time. But I feel कि किधर भी घूम लो, कितना भी घूम लो, मुंबई आके एक जो फीलिंग है ना, जो यहाँ पे रैंडम लोगों से बात करने में भी है, वो तुमको और कहीं नहीं मिलना बहुत मुश्किल. It's home. हाँ, it's home. And it's home for even random people. Like we see stories popping every day. Yeah. कि कोई बोल रहा है भाई मैं बाहर से आया था, मेरे को उसने छत दे दी, किसी ने खाना दे दिया. वो तुमको कोई और सिटी में मिलना मुश्किल है. People, I guess it's Mumbai. Yeah. बनती है लोगों से, आई गेस, बिकॉज एक रील मैंने भी देखा था, मैं शेयर करती हूँ, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. अरे बिंदास. वो बंदा time बैंगलोर होगा. से था, आई गेस इसने मुझे शेयर किया था. वो बंदा बैंगलोर से था एंड उसने बोला कि बैंगलोर में भी मेरे यहाँ पे वो लाइक फूड बनाने के लिए आता है. व्हाट इज कॉल्ड? शेफ? नो, शेफ, नो, लाइक केटरर, होममेकर. महाराजा. महाराज. या सो द लेडी शी यूज्ड टू कम बैंगलोर में एंड वो खाना बना के चले जाती थी. बट शी विल बी महारानी ना. अरे यार एक्चुअली हाँ, नहीं नॉट मेड यार, वो महाराज एक होता है जो सिर्फ शेफ होता है. भाई घर का खाना भी महाराज. इट्स राजू बेटा. Oh my god, oh my god. ये डार्क हो रहा है. अरे राजू बेटा इधर आ रहा, आज खाने में क्या बना है? Yeah, the cook. Oh, so the cook. इसको कुक याद नहीं आ रहा था देखो कुक नाम. नहीं Like, not, it's called something else. I know that, but I'm just not. अरे महाराज जी, आई अंडरस्टूड. बेसिकली कुक और मेड के बीच में का एक होता है जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उनका ड्यूटी सिर्फ उतना होता है, बराबर? Yeah. Completely. Yeah. So, I don't have any words guys. Yeah. the point here is, जब वो बंदा बैंगलोर में था, तब उनके यहाँ जो वो लेडी आती थी खाना बनाने के लिए, तो खाना बना के नॉर्मली चली जाती. बट जब वो शिफ्ट हुआ मुंबई, ओके, सो यहाँ पे वो जो आंटी जो उनकी खाना बनाने आती थी, लंच में उन्होंने प्रॉपर खाना बनाया उनके लिए. इवनिंग में वो ढूंढ रहा था तो अपने तक, तो ही कॉल्ड अप वो आंटी को एंड उसने पूछा कि शाम का खाना क्यों नहीं बनाया आपने, लाइक तो फिर ही से तो वो लेडी बोलती है कि नहीं मैं आपके लिए खुद बनाकर लेके आ रही हूँ खाना. एंड वो फेस्टिवल सीजन था, गणेश चतुर्थी था, तो उस टाइम पे वो अपने लिए मतलब वो खुद के घर से पूरन पोली, मोदक एंड प्रॉपर द डेलिकेसीज जो हम भगवान को प्रसाद में चढ़ाते हैं, वो सेम उनके लिए भी पैक करके लेके गए. एंड उसने वो बंदे ने वीडियो बनाया, इट वेंट वायरल कि मुंबई एक्सेप्ट्स यू, लाइक वो मुंबई लिटरली आपको ओपन आर्म्स से वेलकम करती है. आप कोई भी हो, इट डजंट मैटर, आप कहीं से भी आते हो, तो मुंबई का ये है. इसीलिए मुंबई इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई होम. मैं कहीं भी चली जाऊँ. डोंट यू थिंक कि मुंबई आप जैसी लाइक घूमने जाओ या कुछ भी चीज मतलब लाइक काम से जाओ, बहुत अलग वाइब नहीं देता? एज इन मुंबई अलग वाइब देता है या कोई और सिटी? मतलब मुंबई काफी लाइक ऐसा होमली वाइब तो देता ही है, दैट Okay. लाइक वी ऑल स्टे हियर, बट इट आल्सो गिव्स यू लाइक वेरी इंस्पिरेशनल वाइब. कि मतलब द हसल कल्चर आई वुड से बहुत ज्यादा. आई बीन टू फ्यू सिटीज एंड वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब कई जगह पे तो ऐसा है कि ठीक है दिन निकल जाएगा, कहीं ऐसा है कि वेरी लेड बैक एटीट्यूड. बट मुंबई जैसे मैं एंटर करती हूँ ना, मुझे लग रहा है नहीं भाई मेरे लाइफ में कुछ तो कमी है, मुझे ये अचीव करना है, मेरे लाइफ का गोल ऐसा है. बट वो हसल वाला फीलिंग है ना, वो देयर इज अ स्पार्क, देयर इज अ फायर जो इग्नाइट करती है मेरे को कि नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू हसल. इमीडिएट Immediate. इट कम्स. मुझे ऐसा लगता है. हाँ. यस बट एक और चीज है कि जो आउट ऑफ मुंबई वाले यहाँ पे काम करते हैं ना, उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है. Yeah, this is friends in my big four company, like where I was working MNC, so there were many people who were out of Mumbai, so they were like क्या है ये, सुबह 9 से रात को 11 बजे तक काम ही कर रहे हैं, कुछ पर्सनल लाइफ ही नहीं है. बट सेम इन देयर होम टाउन
सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक काम करो, फिर चिल करो, फ्रेंड्स के साथ बैठो, ट्रू ट्रू, हाँ सो वो मुंबई में बैलेंस फाइंड आउट करना इट्स मुश्किल, और ये तो मुश्किल अभी है, बट इवन आई फील कि मुंबई पीपल आर लाइक उनको पसंद ही नहीं है ये चीज करना. Yes. मुझे ऐसा लगता है कि Yes. उनका लाइफ ही नाइट लाइफ में जब भी अगर Yes. उनको करना है वीकेंड में True, स्टार्ट होता है, True. बट अदरवाइज दे लव डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. मुझे Agreed. पर्सनली Yes, ऐसा फील होता है. agreed. भले कोई कितना भी क्रीप कर लेना, मतलब मुंबई वाले लोग कितना भी क्रीप कर लो, लोकल ट्रेन इतना ये सेंट्रल ऐसा है वैसा है, या वो है गर्दी होता है ये होता है, बट स्टिल वो बंदा वो बंदी नेक्स्ट डे उठ के जाना चाहेगा ही. अगर वो नहीं जाएगा तो वो पागल हो जाएगा. पागल हो जाएगा इंसान. वो अगर काम ना करे ना, तो मुझे पता है कि भाई अगर एक दिन भी मैं घर से बाहर ना निकलूं और नहीं देखूं चीजें ना, तो मैं पागल हो जाऊंगी. ट्रू ट्रू ट्रू. सेम know? महाराष्ट्र के बाहर ही कुछ ना कुछ तो मुझे तो ऐसे ही लगता है. ट्रू, महाराष्ट्र के बाहर ही कितने ऐसे जगह है लाइक फेमस सिटीज विच एक्चुअली शट डाउन बाय 8-9 PM एंड यू लाइक अब क्या करूं, अब क्या रूम में जाके टीवी देखना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए बाहर आई हूं. can't do. मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ. एंड अगेन लाइक जो लाइक आफ्टरनून नैप एंड ऑल जो लेते हैं, लाइक प्रॉपर 2 घंटा सब बंद रहेगा. मैं तो इमेजिन करूँ भाई मेरा दिन तभी चालू हो रहा है, तुम तभी सोने जा रहे हो, तुम करे क्या इंसान तब तक. Can't happen. यहाँ पे मुंबई में कुछ आफ्टरनून नैप जैसा कुछ People take nap only while there is a traffic, and जब मतलब कार में बैठे हो, कार में. that is a nap time. ट्रेन या तो local train, जगह कहाँ होती है नैप लेने के लिए? मैंने मिल गए तो एक दूसरे के कंधे मिल जाते हैं लोगों को, पता नहीं बाजू में कौन है, बट सो जाओ. हाँ ये तो सच्ची मैंने भी देखा. मेरा सबसे बड़ा रीजन जॉब छोड़ने का था बिकॉज वन फाइन डे मेटा वालों की तरफ से एक ईमेल आता है. विमेन डे के लिए था वो, लाइक सेलिब्रेशन के लिए. एंड वहाँ जो चीफ गेस्ट थे, मतलब देवर अदर पैनल पे और भी लोग थे, बट सानिया मिर्जा थे. एंड शी इज लाइक माई इंस्पिरेशन. तो बिकॉज आई ग्रोन अप सीइंग हर, लाइक वॉचिंग हर. एंड देन तो मेरे को लगा कि फेक है बिकॉज ईमेल आता है और मेटा से आया, तो मेरे को ऐसे कि फेक ही होगा, पक्का फेक है. तो मैंने वो मेल पे रिप्लाई किया और मैंने बोला नहीं क्लिक करूंगी इस लिंक पे. तभी उनका सामने Who does that, bro? आई नो. तो मैंने आउट ऑफ कि मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया एंड सेड कि नहीं नीलम, हम ऑफिशियल मेटा से ही बोल रहे हैं, हमारा ऑफिस है BKC में. मैंने बोला आप तो झूठ मत बोलो, इंडिया में ऑफिस किधर है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस मेरा. तो बोलती नहीं है BKC में हमारा ऑफिस है, ये फ्लोर पे है, ऐसा ऐसा है. मैंने बोला ओके ठीक है. तो फिर मैंने बोला वापस एक मेल भेजो, अभी आपने बात किया ना जो, तो ऐसे लिखो कि अकॉर्डिंग टू द टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऐसा प्रॉपर. तो उन्होंने प्रॉपर मेल भेजा एंड सच्ची में सानिया मिर्जा. एंड उस दिन था होली, लाइक द रंग पंचमी, एंड मेरा ऑफिस वर्किंग था बिकॉज US क्लाइंट्स. तो मुझे समझा नहीं क्या करना है, और मुझे सानिया मिर्जा से मिलना था और ये छुट्टी दे रहे नहीं थे. तो फिर मैंने उठाया अपना लैपटॉप और पूरा रोड खाली था. मैंने कैब बुक किया और मैं कैब में काम कर रही हूँ. मुझे लोन्स करने थे, मैं बैंक में काम करती थी, तो मुझे वो लोन क्लियर करना था और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था. मैं काम कर रही हूँ मैं लॉग आउट भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं वहाँ पे एक ऐप होता है जिसमें दिखता है कि यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो बंदा मुझे कॉल कर रहा है, मैनेजर इज कॉलिंग, तू एक्टिव नहीं दिखा रही है वो लाइक पर्टिकुलर ऐप पे, आई कैन नॉट नेम इट, बट योर ऐप पे इट्स लाइक या नेटवर्क इशू, आई टेल यू, लाइक होली का टाइम है, सो नेटवर्क इशू, वो लाइन का काम चल रहा है वहाँ पे. पानी गया उसमें. मैंने होली में मैंने यस, नो इलेक्ट्रिसिटी नो वर्क. देन इज लाइक वो जो हमने तुझे भेजा था बैकअप, अब मेरे ऑफिस ने बैकअप भेजा था, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो 2 घंटे का एक बैकअप रहता है, तो वो यूज कर सकते हैं. मैंने बोला वो तो ऊपर है, वो तो निकाल नहीं सकती. मैंने झूठ बोला मैंने मैनेजर से, और मैं 4 to 5 बार झूठ बोली. मैंने कैसे मैं कैब करके BKC पहुंची. मैंने वो इवेंट अटेंड किया अपना लैपटॉप ऑन रख के. कैसे मैंने किया वो इवेंट अटेंड. वहाँ पे पैनल पे और भी थे, बहुत सारे लोग थे. फे डिसूजा, इफ एनीबडी नोज, शी इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, एंड वो थी. देन देयर वाज लाइक और भी बहुत सारे लोग थे. देन ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, करिश्मा द ओनर, शी वाज देयर. एंड मैं एंड द पर्सनैलिटी, वो जब बोल रहे थे ना, उनको सुनना अगर मैं मिस कर देती ना, वो एक पॉइंट था जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये वर्थ इट नहीं है. अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई जो मैंने मिस कर दी, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज. लाइक मुझे क्रूज के लिए कोलैब आया था, आई मिस्ड इट बिकॉज मेरे को नहीं मिल रहा था 7 days हॉलीडे, बिकॉज मुझे उसके बाद छुट्टी चाहिए थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन. तो मेरे को ऐसा लगा था अभी हाई टाइम हो गया है,
एंड उनका भी गलती नहीं, दे कैन नॉट गिव यू लीव ना। तो मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज मिस करना अब मुझे नहीं लग रहा है कि सही है, तो फिर मैंने बस तभी ठान लिया कि नहीं, अभी आई हैव टू लीव माय जॉब एंड फोकस ऑन दिस, एंड देखते हैं जो हो जाएगा। वैसे पहली बार, वरना मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं सब रखती हूँ कैलकुलेशन, अभी से 5 साल बाद की सेविंग्स, अभी से ये क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है, 30% वो, 40% वो। नहीं, ये पहली बार था लाइफ में जो डिसीजन जो मेरा था। एज अ तुझे भी पता होगा, लड़कियों को डिसीजंस लेना कहीं ना कहीं अलाउड नहीं होता, हमेशा कोई ना किसी के फेवर में लेते हैं हम लोग। भाई ने बोला, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, मोस्टली द मेल। मैंने अपनी सुनी, जबकि सब मेरे अगेंस्ट थे, इवन माई फैमिली। मेरी मम्मा मेरी बड़ी सपोर्टर, शी इज माई बिगेस्ट सपोर्टर, बट इवन शी वॉज अगेंस्ट माई डिसीजन। बट देन मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया एंड ही सपोर्टेड मी, एंड देन yeah, we did like yes I'm talking about him. So he supported me, he supported me, and then फिर मैंने सोचा कि उसने बोला तू कर, तुझे लगता है ना, दिल पे हाथ रख और तुझे जो लगता है तू कर। We just need one person to say yes true, मतलब ऐसे हो गया था 100 अगेंस्ट थे, बट वो वहां पे था, तो मुझे ऐसे लगा उसने बस बोला दिल का सुन, एंड मैंने वही किया, एंड आई एम हैप्पी नाउ। मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई मैं नोटे छाप रही हूँ, बट आई एम हैप्पी दिल से आई एम हैप्पी। दिल से हैप्पी, और नोटे नहीं छाप और कुछ मैं क्रूज जा रही हूँ, बट मैं नोटे नहीं छाप। क्रूज नहीं जा पाई ना, तो अभी रीच आउट Oh God, ये खत्म नहीं होगा। नहीं, बट हम में से कोई क्रूज गया है क्या? तू गया? collaboration I want to go. Guys, what are you doing? Top food bloggers and lifestyle bloggers are here. Excuse me? No, yeah, please let's go. मुझे तो ऐसा लगता है कि this time we should go. This time पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, but जब भी आएगा we are manifesting cruise. प्लीज, इसका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, कैमरा इसकी तरफ करो। Yes. यू मैनिफेस्ट, ये दोनों का जो मैनिफेस्टेशन चलता है ना, किसी का नहीं चलता इस रूम में। किन दोनों मुझे का? इसका और तेरा। अच्छा, आई एम okay. 100% श्योर, अगर तुम दिल से चाहोगे हो जाएगा। विल पावर हमारा भाई नाम तो ले ले, इसका उसका बेचारा बोल दो बेईमान इंसान बन के रह गया। ऑन कैमरा बोल दो, ऑन पॉडकास्ट बोल दो। वायरल हो जाएगा पूरा। बता बहुत दिल टूट जाएंगे बाय द वे। 101 फूड पेज का 1 तो पता है, 0 कोई नहीं है, एक 1 पीछे। नाम बता अपना। उसका वो ऐड कर देती हूँ। इतना साइलेंट आदमी है ना ये, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत साइलेंट है। एंड आई नो देम इन पर्सन। या Opposites opposites No, but he actually supports her a lot and I appreciate that. यस, थैंक यू। अब तो नाम ले ले भाई। अरे इसको तो जैसे शादी में हम नाम लेने बोलते हैं वैसा कर रही है ये। अभी टाइम है उस चीज के लिए, अभी बोल दे। चलो ठीक है, लेट्स गो हेड विथ, क्योंकि ये फैमिली भी देखने वाले पॉडकास्ट, सो आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। या प्लीज, हाँ मेरे पापा पहले ही फ्यूरियस हो जाएंगे। कौन आ छोकरो? सेम मेरे माँ बाप को तो तूने स्टार्ट ही पॉडकास्ट इस पे किया, कमिटमेंट। ये प्लीज कर, तूने बोल दिया कमिटेड, तो मैं सोचा These boys are committed, और तेरा भी। भाई कुछ भी कट नहीं होगा इसमें से, मैं पहले बता रही हूँ। सब कट होगा। Yeah, so you're fucked basically. Yeah. No, we are not fucked. You are, but she said boys no. मैं चलो रैपिड फायर क्वेश्चंस, Oh my god, love it. लेट्स स्टार्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बट यू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है? नेम बेस्ट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू यू। I'll name 2, Wake Up Avi and दूसरा Avi का ग्राम. I love their content. Wake Up Avi because he keeps on giving variety. I have known him since he was like under 10,000 followers, and to see him grow beyond me, like he's at approx 120k. And जैसे वो आंटी को इन्वॉल्व करता है पूरे वीडियो ब्लॉगिंग में, हम like आज ही डिस्कस कर रहे थे कि इट इज सो मच फन टू सी दैट काइंड ऑफ कंटेंट एज वेल. एंड अभी का ग्राम बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर इंडस्ट्री में एक बंदा आता है जो ट्रैवल कंटेंट और फूड कंटेंट भी हो या जो भी हो, उसको ऐसे क्रिएट करता है अपने एडिटिंग के साथ कि सामने वाला रुक के पूरा एंड तक देख के ही जाए. आई फील दे बोथ आर रियली किलिंग इट इन देयर. एंड ऑब्वियसली दीज गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू से इट डीओपी ये कट करने के टाइम पे राजीव का पार्ट कट हो जाएगा ना ऐसे, मतलब स्क्रीन में क्रॉप हो जाएगा ना. लॉल
कैसे बोल रही है यार? Like, I don't, नहीं, but actually मेरा हाथ आ रहा है उसमें. नहीं, But because तो he didn't take my name. Oh shit! भाई यार मतलब तू तो है ना. No, but he didn't no. take our name. Guys, okay. ये crop हो जाएगा. I Okay. want him to be cropped अभी. Let's है get ना? this out थोड़ा of सा the way. सरक जा क्योंकि I'm gonna crop him तो I don't want your hand to be get cropped. Okay, let's get this out of the thing कि हम अपना ही नाम लेंगे तो मजा क्या है ना. नहीं, अपना थोड़ी है, दूसरे का है. तो अपनी नहीं है. आज से इसके साथ नवरात्रि खेलना बंद. आज से नवरात्रि. अगली नवरात्रि बंद. देखिए कैसे चुप हो गई. नहीं बट द पॉइंट इज कि हम अपना नाम क्यों लेना. बिकॉज आई नो स्नेहा क्रिएट्स अमेजिंग कंटेंट, भावेश क्रिएट्स अमेजिंग कंटेंट. इनका नाम क्या लेना है इनके अलावा मैं बता रहा हूँ. एंड आई फील तुम लोग भी हम में से नाम मत लो, कुछ अलग बताओ. बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि No, we like your content, so we will take your name. That is मतलब not मैं तो a बोलने ही problem. वाली थी, अभी इसने बता दिया अपने हैं तो मैं नहीं लेने वाली. हाँ मत ले यार सच्ची जेन्युइनली. मैं जेन्युइनली बोलने वाली थी. क्यूट थैंक्स. बोल तेरी बात. Okay, best food. बेस्ट फूड बिरयानी, चिकन बिरयानी एनी डैम टाइम. Where? लकीज, बैंड्रा, ऑलवेज एंड फॉर एवर. Okay. Best brand that you have worked with. Damn, okay. No, can't remember. Sorry. Can't Like- remember only. Best brand, genuinely, I'll say. Actually, all brands are like decent enough. I've never faced an issue with anyone, apart from a few. But yeah, most of them have been very good with me only. Okay, best collab that you have done till now. Best, you mean influencer collab या brand collab? Any collab that you felt कि भाई ये मेरा best collab है अभी तक का. रिसेंटली मैंने नीलम के साथ नवरात्रि का एक किया था जहाँ पे हम लोग सब ऐसे हाथ पकड़ के Yes. घूम रहे थे. Very तो cute, बहुत फन था. इट वाज Okay. वेरी रैंडमली प्लान्ड एंड डन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी ब्रांड ना, I genuinely don't want to name anyone because I have felt कि I've been very lucky in terms of working with brands because they listen to me. अगर मैं उनको बोलता हूँ फुट डाउन रख के कि नहीं बॉस ये नहीं करते तो वो सुन लेते हैं और बोलते हैं आप जैसा बोलोगे वैसा करते. तो आई थिंक मैं किसी को नेम करके ये नहीं बोलना चाहता कि वो खराब है या ये खराब है. सब बहुत अच्छे रहे, टचवुड, एंड आई एम थैंकफुल कि हमेशा से ऐसा रहा है. Biggest collab that you have done, but tell us the number also. I did it for IKEA. In that terms, Yeah. हाँ. The biggest collab which I did was with IKEA 2 years ago, but I actually did it for barter. So. but I was- said about numbers money-wise only. it was the हाँ. money Money-wise wise. only I'm asking. Money wise, damn bro. Commercial-wise that should be highest. Commercial wise, I don't think I've gone beyond 10K as of now, but I can't remember which brand. Okay. 10K All of is it the is the best. maximum Okay. I've charged any brand. so Okay, far. okay. Best influencer according to you. Best influencers, I could say. So of course you're there because Sneha Naidu. Initially it was Bliss Walden also, but yeah, Sneha Naidu. I love how she keeps the suspense part. मेरे को वो जानना है ना. अभी if you have noticed, जब वो story भी बता रही थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का, मैं रुकी थी, अब आएगा सस्पेंस, अब ट्विस्ट आएगा. वो जो वो करती है ना, Nice. वो एक सही पार्ट है. वो कैसे करती है, वो आपको ग्लूड रखती है एंड लास्ट में सस्पेंस रिवील करती है. इफ यू सी तेरे सारे वीडियोस वैसे है एंड आई लाइक वो मेरे को Is it? एक हाँ मैं सब हाँ ये चीज़ मैं बोलना भूल गई कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, आप कैसे भी कंटेंट पोस्ट करो, मेरी एक आदत है कि मैं कुछ ना कुछ सबसे उठा दूँ. जैसे योर दैट सस्पेंस पार्ट, भावेश का ऐसा है कि वो एक टोन है उसका, वो मेंटेन करता है. Yes. वो उसका काफी ऐसे, कोई भी एक वीडियो दूसरे वीडियो से ऐसे नहीं लगेगा कि भाई ये किसने किया, ये ऐसा नहीं लगेगा. राजीव का ऐसा है कि वो बंदा क्रिएटिविटी लेके आता है, कहीं से कूदेगा, कहीं से जंप कर रहा है, कलर्स बदल रहा है एंड सो कलरफुल वीडियोस देखने में हमेशा मजा आता है. एवरग्रीन बोलते हैं ना, लाइक वैसा रहता है उसका. देन आई लव दिव्या दलवानीज वीडियो, वेरी नाइस वीडियोस. जिस हिसाब से वो स्टार्ट करती है वो काफी अच्छा रहता है एंड वो क्रिएटिव भी है अपने Her कंटेंट. videos are more tempting also मेरे हिसाब से. मतलब Yes, most yes. tempting videos she make मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों. her tone and the way she हाँ. reacts and बोलते काय मस्त, मतलब she tries, she doesn't know how to speak Marathi, she's a Sindhi girl, but then she tries and वो cute लगता है, is a cute element. मन एक और है, नाम है सिद्धू. He's a Marathi, like he's Maharashtrian and he creates content around like Marathi language. but उसका एक सीरीज है मराठी माणूस इन मुंबई.
दैट हैज वेंट वायरल लाइक क्रेजी। और वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, वो इतना ऑनेस्ट है कि वो रेस्टोरेंट को कांटेक्ट जैसे किया किसी ब्लॉगर ने उसको, या फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ने किया, वो क्लियर बोलता है अगर मुझे आपका फूड अच्छा नहीं लगा आई विल पे एंड आई लीव, मैं झूठा नहीं करूंगा। एंड उसने मैंने लिटरली मैंने अपने तरफ से मेरे जो मतलब मैंने जिसके साथ काम किया था मैंने उसको रेफर किया, एंड उसने सेम चीज लेजिट ब्रांड के साथ किया। उसने बोला कि मैं अगर मुझे नहीं अच्छा लगा आई पे फॉर इट, मैं निकल जाऊंगा। जो सामने वाला भी होता है कि भाई, एंड ऐसा भी नहीं कि उसकी फॉलोअर्स लाइक 200 ऐसा से वेरी मतलब कम फॉलोअर्स है, बट स्टिल उसने वो अपनी क्या बोलते हैं व्हाट इज द टर्म कि मेंटेन रखा है उसने कि मैं पैसों के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को जो सही लगा क्योंकि मेरे ऑडियंस देखते हैं। उसका ऐसे ही था कि लोग हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास लोग देख रहे हैं, वो हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हैं, उनका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मैं वैसे ही कंटेंट डालूंगा। तो ही इज देयर, या and of course I'll follow you. नाम है सिद्धू ना? नाम है सिद्धू भाई। हाँ, even I'll do. मैंने नहीं सुना था, today I like heard about best food according to you. Best food मतलब depends upon the situation. I like butter chicken. Like कभी भी दे दो butter chicken. Where? गोइलास यार, मतलब मुंबई में। You have tried Goilas? Yeah, Goilas butter chicken. I have also met him. Oh, he's a great personality. बहुत ही sport है, मतलब मैं just थोड़े ही मिनट के लिए मिली थी उनसे, but very nice. Yeah. And the best chicken so far, मतलब लोगों ने बोला है कि उससे भी बेस्ट है, but I think that's the best. Goila butter chicken, if you see us, please send us the hampers. If Kalyan tak you guys can send, I'll put up 4 stories. Please do that. You're accepting barter collaboration. 4 stories I can sometimes manage, like for best brand that you have worked with. जैसे राजीव ने कहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट कोटिंग ऑन एनीथिंग, बट देन जेन्युइनली मुझे ब्रांड्स अच्छे मिले हैं, एंड हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली जिनके साथ मैंने काम किया मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। एंड रिसेंटली मैंने राजीव के साथ मतलब उसकी जो एजेंसी हमारे साथ कौन कोलैब कर रहा है, तुम ही एक दूसरे के साथ कोलैब करो। नहीं ठीक है, ये भी नो, बट एक चीज उसने मुझे बोली, ब्रो तुझे जो करना है तो बिंदास कर, तेरे को वो छूट है। ये क्रिएटर के लिए, सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, एज ए क्रिएटर ना ये सुनने में ये इट्स लाइक आई लव यू गर्लफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड वाला सीन है। भाई तू जो करना है तेरे को कर, वैसे वाला ही है। सो इट्स लाइक फ्रीडम मिलता है ना, तो तुम क्रिएटिविटी को स्पेस मिलती है। इवन राजीव का जो कोलैब वी ऑल डिड, मुझे तो काफी मजा आया ऑनेस्टली, मतलब लाइक इट वाज वेरी फॉर लाइक वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब हम मिले एंड ऑल, बट देन जो फ्रीडम दे दिया ना भाई, तू कर, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये 2-3 चेंजेस बता दिए, बट देन इट वाज लाइक फन। Yes, अरे मतलब कुछ भी कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा, अरे यार ये करना है, अरे यार पेमेंट नहीं आएगा, अरे यार not at all, everything was very easy. Yeah. Best collab that you have done? Best collab, मतलब collab in terms of commercials, like biggest collab that you have done with commercials and with numbers, you tell me. I cannot name them of course for like reason, but the best like near to 20K like ब्रांड को चार्ज किया था, एंड दे वर हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब मैंने उनको बताया, मुझे लगा कि अब निगोशिएशन होगा ऐसे वैसे, पर उन्होंने खुशी खुशी साइन कर दिया। तब मुझे ऐसे, तब मैं सेटिंग में से लगा ज़्यादा मांगना चाहिए, कम किया, कम मांगा, मेरे को भी होता है कभी वैसे। ट्रू, बट यस बड़ी ब्रांड थी, बट ऐसा नहीं कि बड़ी ब्रांड है तो मैं कुछ भी एक इमेजिनरी नंबर सेट करूँ, बट यस 20K तक। भावेश, नेम बेस्ट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू यू। सो सबसे पहले ये सब तो है ही, प्लीज डोंट टेक गुड, आई एम नॉट कटिंग यू। बट जो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स है वैसे तो, बट जो 2-3 आई लाइक द कंटेंट एंड हाउ दे मेक द फॉलोअर्स लाइक एंगेज, डैनी पंडित एंड विराज गेलानी। मतलब how they connect with the audience ना, too good, and especially विराज की नानी, I like सबकी शायद favorite होगी। और अभी recently she also gave award to Anupama. Yes. That was so cute moment, पता है? सबसे बेस्ट था कि वो जब नानी लिटरली रो रही थी जब वो अनुपमा, she had tears in her eyes. जो उनका हार्ट, मतलब I was like amazed वैसे प्रॉपर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, और थोड़े से सीक्रेट्स भी हमने कुछ स्पिल किए हैं जो आप किसी को जाके बताना मत, बस आपने पास रखना, ठीक है? नाउ ओवर टू यू। Like, Share. Subscribe. You guys Bell notification. and do turn on bell
नोटिफिकेशन, और तुम लोगों ने ना काफी अपने अपने अंदाज में बोला है, लाइक इसका आवाज एकदम वो वीडियो वाला योर, एंड ही इज ऑल्सो, so I like that thing. Please do go follow them, like their videos, and just like whatever they are recommending, just go and blindly follow that. I'm sure they just like, you know, cover the amazing places around Mumbai and outside Mumbai also. So do that, and I hope to see you in the next video with another podcast with another personality, which is, by the way, a psychologist who is gonna talk about like a very we're gonna have like a very deep conversation in that. ये podcast काफ़ी fun था, but I won't let you guys go with this कि fun बहुत time तक नहीं चलेगा. नॉलेजेबल पॉडकास्ट भी करेंगे, इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट भी करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में आना, ज़रूर देखना. बहुत सारी यू नो लाइक अपनी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हम बात करेंगे, सो बिल्कुल भी मिस मत करना. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच एंड ब्लेस आउट. बाय. Bye bye.